Good morning, students. Welcome to our new chapter, that is menstruation. Clear? Menstruation is a very important topic in our day-to-day life. Whenever we are, there is the use of the menstruation everywhere in analyzing the objects or covering the distance or foreign construction work, whatever the object we see in our daily life, these all are nothing but the part of the menstruation. It is a branch of the mathematics which deals with the study of the objects, and hence we can find out their areas, perimeter, whatever is there. So in the present situation of the chapter 11, in the first exercise we will discuss area and perimeter of the shapes. Clear everybody? First of all, I will discuss important formulae. Important formulae are number one here for rectangle. You all are knowing what is the rectangle. Area of a rectangle. Area of rectangle is nothing but L into B. This is the formula for area of the rectangle. Second one is area of square. Area of square is equal to side into side. Side multiplied with the side. Third one is perimeter of rectangle Perimeter of rectangle is nothing but sum of all the sides. You know, circumference is nothing but it is the total distance covered along closed boundary. So that is equal to 2 times length plus breadth. Fourth one is perimeter of square. Perimeter of square is nothing but 4 into side. Clear? These are the two formulas regarding area and perimeter I have written here. Clear? Then after we can find out area of a circle. Area of a circle. In class 8 you have gone, in 7th you have gone through the area of circle pi r square. What is that? Pi r square. Sixth one, circumference of circle. Circumference of circle equal to 2 pi r. What is the formula for circumference of circle? 2 pi r. अब circumference of semicircle. Semicircle circumference will be 2 pi r
pi r over 2, that is pi r, and this is a semicircle. You can see this part is a pi r, and what is this one? D. Plus will be D. D is nothing but the diameter of the circle. You know, diameter is twice the value of the radius of any given circle. So these are the important formulas we will utilize in our present exercise 11.1. Clear everybody? You people have to go through all these formulas. Then after we will be able to solve the questions. We can analyze. First of all, you have to read the statement twice, and you have to think what to do. Area we have to find, perimeter we have to find, whatever the things we have to calculate. Firstly, you read carefully, then after solve the question. Okay? So let me see exercise 11.1. Exercise 11.1. Question number 1 here. In the question number 1, a square and a rectangle are given. Question क्या होता है बेटा? We have given a square and one rectangle. One is square and another is rectangle. This way, one square and one rectangle is given. The side of the square is 60 meters, so obviously all sides will be 60 meters only. Square is given, and another rectangle is given whose length is 80 meters and breadth is not given. According to question, what is given? A square with side 60 meters and a rectangle with side 80 meters are given, such that their perimeters are same. Given solution में सबसे पहले जो हाईलाइटेड चीज है, given perimeter of P stand for perimeter of square is equal to perimeter of rectangle. Perimeter of square formula is nothing but 4 into side is equal to 2 times L plus B. This is for square perimeter. As I written above in the statement, perimeter of square equal to perimeter of rectangle. Symbol I have kept here. So this will be 4 into side. Side value 60 is equal to 2 into L 80 plus breadth is not known. So from here I can cut it 2 2s are. So 120 is equal to 80 plus B. So B will be 120 minus 80. So breadth will be 40 meter. Breadth कितना हुआ? 40 meter. Whose breadth is this one? A rectangle. Breadth of a rectangle is equal to 40 meter. Now we have to find out the area of shape.
square and rectangle. To find area of square, that is equal to side into side, which implies 60 into 60 is equal to 3600 meter square. This is coming for the area of the square. Now area of rectangle, that formula goes L into V, means 80 into breadth I got as 40, so 8 for the 3200 meter square. So you can tell me, out of these two, which geometrical shape has larger area? So whose area is greater? We find area of square greater than area of रेक्टेंगल. हमने यहाँ से ये चीज फाइंड आउट कर लिया कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल के एरिया से क्या होता है, ज्यादा, इट इज मोर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. So if 2 square plot with measurement. क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमारे पास कंडीशन है, a man having a square part. जो square part है वो ऐसा है, पहले आप क्वेश्चन समझ लो. This is a square part whose each side is 25 meter, 25 meter, 25 मीटर, 25 मीटर. ये मेरे पास एक स्क्वायर पार्ट दिया हुआ है. कौशिक हैविंग दिस टाइप ऑफ स्क्वायर पार्ट whose each side is 25. You know, in square all the sides are equal, and he wants to develop house in it. ये पार्ट के अंदर उसको एक घर बनाना है और उसकी डायमेंशन रेक्टेंगुलर शेप का जो दिया हुआ है पार्ट, दैट इज 20 by 50 मीटर, 20 मीटर एंड 15 मीटर. डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट आर गिवन. ही डेवलप्ड अ गार्डन. अब इस पार्ट के अंदर देयर इज वन garden developed by Kaushik, Mrs. Kaushik, and we have to find out the area of the, we have to find the area of this garden at the rate of ₹55 per meter. सबसे पहले हम लेंगे फार्म प्लॉट. वो कैसा रहेगा? Where area of plot, that will be square is side into side, 25 into 25 is equal to 625 meter square. Area of the square plot is equal to 25 meter square. Now we have to find the area for house part. ये कैसा है? रेक्टेंगल है.
रेक्टेंगल। तो उसके लिए लेंथ कितनी दिया है मेरे पास 20 मीटर और ब्रेड्थ कितना दिया है 15 मीटर। सो एरिया ऑफ आवर हाउस इक्वल टू 20 into 15 is equal to 300 meter square. This is the first part and this is the second part. अब हमें जो गार्डन का जो पार्ट है ये वाला we have to find out the area of the garden. So area of the garden equal to outer area minus inner area. That will be 625 minus 300 is equal to 325 meter square. Clear? Now we have given cost of 1 meter square equal to ₹55. ये तो 325 meter square cost will be 325 into 55. So we can multiply here. After that will be the total cost. Okay. So after multiplying, we will get this answer same as it is. 5, 2, 6, 1. So 5, 7, 8, 7, 1. So this is the total cost in rupees coming while developing the garden around that house. So this will be the total cost paid by this man. Question number 3. Can you do it or not? 3 I will do 4 as homework. ले बेटा, तो सबसे पहले यहाँ से हमारे पास स्क्वायर पार्ट का एरिया आ गया, उसमें से मैंने रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया माइनस कर दिया. आफ्टर दैट वी गॉट द एरिया ऑफ दिस पार्ट, गार्डन पार्ट. तो आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर दिया, मेरे पास जो गार्डन था उसका एरिया गया. अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट 55 है, तो 325 के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई विद 55, you will find the answer, that is the total cost. So question number 3. You see the question as a shade given in the question 1, 3. 1. Shape of the garden is this way given. See, it is rectangular, but from the corner it is circular. Its ends are circular. उसमें राउंड शेप करके उसको दिया हुआ है. And total length from here to here it is 20 meter. What is the total length given here? 20 meter. And the breadth, you can imagine this breadth of a rectangular part will be 7 meter. Understood everybody? Find the area and perimeter of the garden. हमें इस शेप का एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करनी है. क्लियर एवरीबॉडी? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो मेरे पास पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, यहाँ देखो ये टोटल 7 दिया है. कितना दिया है ये 7. तो इसका रेडियस कितना लगेगा बेटा 3.5 और 3.5.
थोड़ा बड़ा करके भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। जो सर्कुलर पार्ट है उसको शो करने के लिए ये जो पार्ट है ये पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 डायमीटर। तो रेडियस कितनी रहेगी? 3.5 क्लियर एवरीबॉडी? गिवन लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू 20 मीटर। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी सी डी, क्लियर एवरीबॉडी? फॉर रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल के लिए लेंथ कितना रहेगा? लेंथ विल बी 20, टोटल डिस्टेंस 20 में से ये 3.5 यहां से और 3.5 यहां से रिड्यूस हो जाएगा। 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, ये कितना बनेगा? 20 माइनस 7 कितना बनेगा? 13 मीटर। और ब्रेथ कितना है? ब्रेथ उसका ऑलरेडी 7 मीटर गिवन है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, सबसे पहले हमें एरिया डिफाइन करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 7, वो कितना बनेगा? 91 मीटर स्क्वायर। अब साइड में फॉर 2 सेमी सर्कुलर, 2 सेमी सर्कल को मिला के क्या बनेंगे? 1 फुल सर्कल बनेगा। एक पूरा सर्कल बनेगा तो उसका एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर बनी 3.5, मतलब 35/10 इंटू 35/10। 7 5 जा 5, 2 जा 2, 11 जा 11, 5 जा 55, 5 385/10 इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? ये और ये वन पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट। दोनों को हम प्लस कर देंगे। 91.00 प्लस 38.5, ये मेरे पास बनेगा 129.5 मीटर स्क्वायर विल बी द ओनली वैल्यू ऑफ द एरिया। तो सबसे पहले मुझे एरिया फाइंड आउट करना था, वो मैंने यहां से एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब सेकंड हैंड में एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैंने किया, टोटल लेंथ 20 थी, 20 में से 3 पॉइंट यहां से 3 पॉइंट यहां से माइनस कर दिया, हिंट भी दिया है बुक के अंदर, तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया। इसकी लेंथ बन गई 13, 20 में से 7 माइनस किया। अब ब्रेथ उसकी कितनी है? 7, तो एरिया कितना था? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर? दो सर्कुलर एंड है, एक ये वाला सर्कुलर एंड और एक ये जो वाला सर्कुलर एंड। दोनों सर्कुलर है, सेमी सर्कल को मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बना, तो कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। दोनों को आपने प्लस कर दिया, एरिया को आपके पास आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी एरिया मैंने फाइंड किया, अब मुझे फाइंड करना है पैरामीटर। व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट? पैरामीटर।
कैसे करेंगे? मैं फाइंड करूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल। ये तो ये कितना बनेगा? टोटल, मैं तो लिख देता टोटल पेरीमीटर इक्वल टू ये। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होगी 2 ब्रैकेट L प्लस B प्लस एक सेमी सर्कल यहाँ पे, एक सेमी सर्कल, दोनों को मिला दो, क्या बनेगा? 2 पाई r। दो सेमी सर्कल है, ये बनेगा 2 ब्रैकेट L बनेगी 17 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू r 35/10। यही काम हमको करना है। 2 इंटू 17 and 7 24 प्लस 7 5 5 2 2 and 2 कट। तो ये मेरे पास कितना बनेगा बच्चों? 22 2 इंटू L प्लस B इंटू प्लस 2 पाई r, क्या बन जाएगा ये? 48 प्लस 22। तो ये कितना बनेगा मेरे पास? पेरीमीटर ऑफ द 2 सेमी सर्कुलर, एक सेमी सर्कल का होता है पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे? माइनस, ये कितना बनेगा मेरे पास? 70 मीटर ये तो बना, बट अगर आप लोग यहाँ से भी आगे देखो तो हमें आउटर बाउंड्री का ये पेरीमीटर लेना है। ये बताइए, we need not to count the values of the breadth, so perimeter will be equal to total मैंने कर दिया 70 में से माइनस कर दूंगा मैं 7 प्लस 7 14, तो कितना बच जाएगा? 10 में से 4 6 10 minus 4 6 minus 1 56 मीटर तक का इसका पेरीमीटर मेरे पास रिड्यूस होगा। ले बेटा 11.1 में। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, -28. This is coming 2 into L plus B. L कितना बना इसका मेरे पास? 2 into L plus B 48 बना। क्लियर? 48 plus 2 pi r 2 pi r, ये मेरे पास इतना टर्म यहाँ पे रिड्यूस हो गया। क्लियर? तो यहाँ से मैंने क्या किया? 2 पाई r 22 की वैल्यू को 70 में से ये माइनस कर दूंगा मैं 7। अब ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये 7 है और ये भी कितना बेटा? 7 डिस्टेंस है। ये मेरे पास पूरा डिस्टेंस बना रेक्टेंगल के लिए 2 ब्रैकेट L प्लस B। यहाँ पे मेरे पास कितना था? कोई मुझे बता सकता है? L कितना था? 20 में से 7 माइनस किया था तो कितना बचा? ये 13 प्लस 7 कितना आना था? ये 20। तो यहाँ पे कितना बचा था मेरे पास? 40 और ये कितना रह जाना था? टोटल 62। कितना रह जाना था? 62 मीटर। अब 62 मीटर में से मुझे ये वाला टर्म जो है वो माइनस करना था।
आ रहा था यहाँ से 48 मीटर। क्लियर? क्योंकि मेरे पास जो लेंथ बची है, ये जो लेंथ है वो 20 माइनस 7 इक्वल टू 13 मीटर बचा हुआ ये वाला। This is only this much point to be kept in mind, so you people can do it. Clear बेटा? तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर दे रहा हूँ बेटा। 4 होमवर्क में 5 आई विल डू। मेरे साथ आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, तब जाकर ही आगे का वर्क जो है वो हम कर पाएंगे। मैं कभी भी मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे से हो जाती है, आपको फाइंड आउट कर लेना उस मिस्टेक को भी। क्वेश्चन नंबर 5, very simple and typical type of the question. You can see the diagram is given as you can see ये सेमी सर्कुलर दिया है, फिर इस तरह से दिया है ये वाला पार्ट दिया है, फिर ये तीसरा पार्ट दिया है ये like ice cream which is given. So you people can judge the diameter as giving the textbook 2.8 centimeter. ये diameter 2.8 centimeter है। अब यहाँ से मैं अगर इसको देखूं तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से सर्कुलर पार्ट मेरे पास बन रहा है। अब यहाँ से अगर मैं इसको भी मिला देता हूँ तो ये कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर की जो वैल्यू है तो 1/8 एक चींटी जो है तो ये भी 1.5 मीटर है, तो ये 2.8 तो ये भी 2.8 ही होगा, और इसमें ये 2 सेंटीमीटर दिया है डिस्टेंस और ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है। अब ध्यान से देखना है, one end is trying to move from this end to make it one complete round. वो A पॉइंट से जाएगी, A पॉइंट से स्टार्ट हुई वो A से B में जाएगी, B से फिर A पे आएगी ऐसे। The ant is making one complete round, so we have to find out the circumference or the perimeter of this part. तो क्या बनेगा आप बोलिए, given D equal to 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना जगह का हाफ 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी अब circumference will be circumference of the semicircle pi r plus d, वो कितना बनेगा pi r। pi value is not given, we can put as 22/7 into r, r बनेगा 40/10 plus d, d का वैल्यू है 2.8, 7 2 सा ये बनेगा 4.4 plus 2.8। कितना बन गया ये डिस्टेंस मेरे पास 7.2 सेंटीमीटर। कितना बनेगा फर्स्ट डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस 1 इन द फिगर नंबर 1 इज पाई r प्लस d, d की वैल्यू है 2.8। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे क्या डिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी पैरामीटर किसके बराबर होगी। अब आप देख लो यहाँ से 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस, अब ये जो पार्ट है द ant will not move from this part, ये पार्ट मेरा क्या रहेगा पाई r, क्या रहेगा बेटा पाई r। क्लियर? तो ये मेरे पास बना 5.8 प्लस r की वैल्यू मेरे पास है 4.4 2 10.2 सेंटीमीटर बनेगा ये सेकंड पार्ट के लिए। अब इसी तरह से मेरे पास पार्ट नंबर 3 है,
3 पार्ट में क्या होगा ये बताओ, क्या डिस्टेंस ऐड होगा 2, इसमें पेरीमीटर इक्वल टू 2 प्लस अब ये जो सेमी सर्कल है इसकी होगी पाई आर, कितनी होगी पाई आर। डायमीटर इसमें भी कौन देगा, बिकॉज द आर्क इज मूविंग इन द आउटर पार्ट ओनली, दैट विल बी 4 प्लस 4.4 पाई आर का वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ 22/7 इंटू 14/10 तो कितना बनेगा 4.4। ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा P इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द और द circumference of the given shape that is given for one end. Clear? So these are our 3 parts. That's over now. Which part is the longer part? Now the question is asked, longer part कौन सा वर्षन में? एक 7.2 है, एक 10.2 है और एक 0.4 है। In second part, maximum distance covered. सेकंड पार्ट जो है ये वाला, इसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो एंड ने कवर किया है। तो ये हमारा 11.1 एक्सरसाइज आज फिनिश हुआ बेटा, कल हम 11.2 स्टार्ट करेंगे। क्लियर?